Hello everyone. Today we are going to study about the one new topic from the unit number 5. Okay. યુનિટ નંબર 5 ઓલમોસ્ટ આપણે કમ્પ્લીટ જોઈ લીધું છે. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હતા એ સૌ પ્રથમ ટોપિક આપણે જોયો હતો એમાં રજિસ્ટર પ્રતિરોધ અને એનું વર્ગીકરણ मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर. तो आज हम क्या देखेंगे, उसके बाद का जो टॉपिक है वो हमने पहले नहीं देखा है, वो है कैपेसिटर. जो हमारे पास जो बेसिक पैसिव एलिमेंट जो है वो कौन कौन से है. एक तो ये रजिस्टर है, उसको हम बोलते हैं आर. दूसरा है कैपेसिटर. यह कैपेसिटर का क्या है, सिंबल है, उसको हम डिनोटेट करते हैं सी से. तीसरा जो है ये जो है इंडक्टर, उसको हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल एल से. तो ये तीनों के बारे में हमें पढ़ना है. ये जो यूनिट नंबर 5 है उसमें ये तीनों जो कंपोनेंट है उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन एंड इनका क्लासिफिकेशन मीन्स એનું વર્ગીકરણ આપણે શીખવાનું છે કે કઈ કઈ ટાઈપના આવે છે. બસ તો એની અંદર આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે રજિસ્ટર વિશે આપણે વાત કરી હતી કે રજિસ્ટર જે છે એનું ક્લાસિફિકેશન કઈ કઈ ટાઈપના આવે છે, કયા મુદ્દાના આધારે એનું વર્ગીકરણ કર્યું છે એ પણ આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું. બરાબર છે. આજે આપણે જોઈશું કેપેસિટર વિશે કે કેપેસિટરની અંદર શું હોય છે, એનું કન્સ્ટ્રક્શન કેવું હોય છે, સિમ્પલ રીતે બતાવવાનું છે આપણે. બરાબર, એકદમ ડિટેલમાં નથી. અને એનું ક્લાસિફિકેશન મીન્સ વર્ગીકરણ. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું ઇન્ડક્ટર વિશે. ઓકે, તો આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું કેપેસિટરથી. તો કેપેસિટરનો સિમ્બોલ જે છે આપણે આ રીતે ડ્રો કરીએ છીએ. બરાબર, હવે એની અંદર શું હોય છે સિમ્પલ, તો કે આ બે પ્લેટ હોય છે. આ જુઓ, બરાબર, વર્ટિકલ પ્લેટ દેખાય છે. એની અંદર આ વચ્ચે જે સ્પેસ છે એ સ્પેસની અંદર શું હોય છે, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल. ओके, मीन्स स्पेस के अंदर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है. डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बहुत सारे टाइप के होते हैं. डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ इंसुलेशन. ओके, इंसुलेटिंग मटेरियल कि वो जो है वो आसानी से करंट को उसमें से पसार नहीं होने देगा, मतलब फ्लो उसमें से होगा नहीं. आसानी से करंट जो है वो मटेरियल में से पास नहीं होगा. सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल. वो कौन से टाइप का होता है उस पर उसका क्लासिफिकेशन होता है वन टाइप में, राइट. सो अभी वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में देखते हैं. तो ये पता चला दो प्लेट के बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है. अब बात करते हैं कि कैपेसिटर का काम क्या है मेन. तो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है. अभी एनर्जी को स्टोर करेगा, लेकिन वो कौन से फॉर्म में करेगा, तो चार्ज के फॉर्म में. तो हमें लिखना है तो लिख सकते हैं कि कैपेसिटर इज स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. ओके, समझ पड़ी. कैपेसिटर શું કરે છે, એક એનર્જીનો સંગ્રહ કરશે. કોના સ્વરૂપમાં કરશે, તો કે ચાર્જના સ્વરૂપમાં. બરાબર છે. કેવી રીતે, તો જ્યારે આપણે કેપેસિટરને ડીસી સોર્સ સાથે આપણે જોડવામાં આવે, બરાબર ને, કોઈ બેટરી સાથે એને આપણે જોડીએ ત્યારે શું થશે, આ જે પ્લેટ જે છે, બંને પ્લેટ, એના ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ જે છે એ સ્ટોર થશે. બરાબર છે. અને એના કારણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે આ બંનેની વચ્ચે શું થશે, જનરેટ થશે. કે એક પ્લેટ પર માની લો કે ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ પ્લસ જે છે એ સ્ટોર થયા, બીજા પર માઇનસ, તો અહીંયા શું ઉત્પન્ન થશે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. બરાબર છે. અને એનર્જી શું થશે, સંગ્રહ થશે. હવે જ્યારે આપણે કેપેસિટરને કોઈ લોડ સાથે આપણે કનેક્ટ કરીએ, બરાબર છે, ત્યારે ક્લોઝ લૂપ બનશે અને એ જે એનર્જી આપણે સ્ટોર કરી છે, જે સંગ્રહ કરી છે, એ એનર્જી આપણે પાછી એને મેળવી શકીએ લોડના મારફતે. બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો. મતલબ જ્યારે એનર્જીનો સંગ્રહ થાય છે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે કેપેસિટર શું થાય છે, ચાર્જ થાય છે. ઓકે, વેન એવર એનર્જી ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન અ કેપેસિટર, દેન વી કેન સે ડેટ
that is the charging process of capacitor, and discharging of capacitor means स्लोली जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर वो लॉस होती जाएगी। ओके, किसके थ्रू? लोड के थ्रू। ओके, जो लोड है उसको चाहिए तो उसको मिलती जाएगी, राइट, और कैपेसिटर में से एनर्जी कम होती जाएगी, तो वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, और स्टोर होता जाएगा मतलब वो चार्जिंग प्रोसेस है। अब जो है ये हमें पता है कि जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, मतलब इसकी जो कीमत, उसकी जो वैल्यू, उसको हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल सी से। अब सी इक्वल टू जो है वो क्या आता है? डेफिनेशन। तो देखो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? क्यू बाई वी। सी इक्वल टू क्या है? क्यू बाई वी। उसका मतलब क्या हुआ? वी मतलब ये जो दोनों प्लेट पे जो पोटेंशियल होता है ना, उसका डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल ना तफावत, અને ક્યુ નો મતલબ શું થશે? ચાર્જ, બરાબર છે? તો એની જે ડેફિનેશન છે એ લખી છે અહીંયા જુઓ, એકમ પોટેન્શિયલ તફાવત દીઠ સ્ટોર થતા ચાર્જને કેપેસિટન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઓકે, મીન્સ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नोन एज अ कैपेसिटेंस, और उसको डिनोटेट कैसे करते हैं हम? कैपिटल सी से, राइट। ओके, सो कैपिटल सी से हमने उसको डिनोटेट किया। अब देखो यहाँ पे सी इक्वल टू क्यू बाई वी लिख सकते हैं, तो हर एक चीज़ क्या है? तो क्यू क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है संग्रह थયેલ चार्ज, मीन्स जो स्टोर हुआ है वो चार्ज, और उसका जो यूनिट है एकम चार्ज का क्या आता है? कूलम। ओके, यहाँ पे लिखा है। अब ये जो V है वो क्या है? प्लेटों वच्चेनो पोटेंशियल तफावत, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू प्लेट। यहाँ पे दो प्लेट होती है, उस पर यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो भी होगा, उसका पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, आ वोल्टेज नो तफावत बंने प्लेट वच्चेनो। ओके, और उसका जो यूनिट है वो क्या आता है? वोल्ट आता है, सिंपल। और जो C है, C क्या है? कैपेसिटेंस, और उसका यूनिट क्या आता है? फैराडे। हम बोलते हैं ना रजिस्टर, तो क्या लिखते हैं? 2 ओम। वैसे कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर का क्या आएगा? मान लो कि 3 नैनो फैराडे, माइक्रो फैराडे, तो फैराडे का हम क्या लिखते हैं? कैपिटल F। एक यूनिट होगा ये, कैपेसिटर का यूनिट क्या आएगा? फैराडे। ओके, फैराडे। तो ये बात हो गई कैपेसिटेंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस जो है वो जो प्लेट होती है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ओके, उसके साथ कैसे रिलेशन में है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C प्रोपोर्शनल टू दी A बाई D, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो कैपेसिटेंस जो है C, वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए का मतलब क्या हुआ? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, किसका? प्लेट का। ये जो कैपेसिटर होता है ना, उसकी प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स एना समप्रमाणમાં હોય છે। ओके, અને બીજી આપણે કેવું હોય તો ये जो कैपेसिटेंस जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, मतलब ये प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये, उसको हम बोलते हैं D। तो ये जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके साथ? कैपेसिटेंस के साथ, राइट। मतलब આજે બે પ્લેટો વચ્ચેનું જે અંતર છે D એ કેપેસિટર્સના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે, બરાબર। તો એને આપણે આ રીતે બતાવીએ છીએ C પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ A બાય D। હવે આપણે જ્યારે આ પ્રોપોર્શનાલિટી સાઇન આપણે દૂર કરીએ, બરાબર છે, અને ઇક્વલ સાઇન કરીએ ત્યારે પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ આપણો આવશે। તો C ઇક્વલ ટુ પ્રોપોર્શનલની જગ્યાએ આપણે શું કરીએ? હવે ઇક્વલ, તો પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ આપણે આ રીતે અહીંયા બતાવ્યો છે, એને કહેવાશે એપ્સલન, યા, રાઈટ। આ એપ્સલન શું બતાવે છે
કે જે બે પ્લેટો વચ્ચે આપણે જે ડાઇલેક્ટ્રિક આજે મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ ને એ મટીરિયલની પરમિટિવિટી બતાવે છે. અને એને જો આપણે એપ્સલન આપણે બતાવવું હોય તો આ રીતે બતાવાય કે એપ્સલન 0 ઇન્ટુ એપ્સલન આર. ઓકે, સો એપ્સલન શું છે? પરમિટિવિટી ઓફ ધી ડાઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ. અને એપ્સલન ઇક્વલ ટુ આપણાથી લખાશે શું? એપ્સલન 0 ઇન્ટુ એપ્સલન આર. મીન્સ એપ્સલન 0 મીન્સ પરમિટિવિટી ઓફ ફ્રી સ્પેસ. બરાબર ને? એ શું છે? ફ્રી સ્પેસની પરમિટિવિટી છે. અને એની જે કિંમત છે એ ફિક્સ્ડ હોય છે. કેટલી હોય છે? જુઓ અહીંયા નીચે લખ્યું છે. એપ્સલન 0ની કિંમત કેટલી હોય? 8.854 ઇન્ટુ 10⁻⁻12. રાઈટ? અને એપ્સલન આર શું છે? રિલેટિવ પરમિટિવિટી. અહીંયા લખ્યું છે. ઓકે, સો આપણે એપ્સલનની જગ્યાએ શું મૂકીએ હવે? એપ્સલન 0 ઇન્ટુ એપ્સલન આર. તો આપણું ઇક્વેશન શું આવશે? સીનું આ રીતે આવી જશે. બરાબર છે? તો આ વાત થઈ બેઝિક કેપેસિટર વિશે. બરાબર છે? હવે આપણે જોઈશું એનું ક્લાસિફિકેશન. ઓકે, તો જુઓ મતલબ क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटर वर्गीकरण. तो कैपेसिटर का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे जो टॉपिक है, मेन जो पॉइंट है उसके बेस पे किया जाता है. मतलब विविध मुद्दाओना आधारे एનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે જેમ કે બે પ્લેટની વચ્ચે આપણે કયું ડાઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ તેના આધારે, પછી વેરિએબિલિટીના આધારે આપણે કરી શકીએ છીએ, પોલેરાઇઝેશનના આધારે પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો એના આધારે આપણે पोलराइजेशनના आधारे પણ કરી શકીએ છીએ. ओके, सो हम वन बाय वन देखते हैं. देखो पहला जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी डाइलेक्ट्रिक यूज़. मतलब कैपेसिटરમાં ઉપયોગ કરેલા ડાઇલેક્ટ્રિક પદાर्थના આધારે વર્ગીકરણ. तो कया कया आवशे? पेपर कैपेसिटर, मतलब उसके अंदर पेपर रखा जाता है. देन सिरेमिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, ग्लास कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर एंड वैक्यूम कैपेसिटर. राइट? सो नेम के हिसाब से पता चलता है कि दो प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो कौन सा है. हमारी जो एयर होती है, मतलब हवा जो હોય છે એ પણ એક ટાઈપનું ડાઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ જ કહેવાય છે. રાઈટ? બીજું છે ક્લાસિફિકેશન બેઝ ઓન વેરિયેબિલિટી. मतलब वेरिएबिलिटीના આધારે વર્ગીકરણ. વેરિએબિલિટી मतलब વેરિયેબલ મીન્સ ચેન્જ થવું, વેરી થવું. બરાબર છે? તો માની લો કે ચેન્જ ના થતું હોય તો એની કિંમત કેવી રહેતી હોય? ફિક્સ્ડ. ચેન્જ થતું હોય તો વેરિયેબલ કહેવાય. તો એના આધારે કેવી રીતે નામ આપ્યા છે જુઓ. फिक्स्ड कैपेसिटर मीन्स कि उसके अंदर जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है, वो चेंज होती नहीं है. दूसरा जो है वो है वेरिएबल कैपेसिटर. सो वेरिएबल कैपेसिटर मीन्स क्या होगा? सिंपली कि उसकी जो वैल्यू है वो हम कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं. गेटिंग? सो वेरिएबल टाइपना कैपेसिटરની અંદર આપણે એની કિંમત જે છે એ સતત આપણે બદલી શકીએ છીએ. બસ આ જ છે વસ્તુ. અને ત્રીજું જે છે એ છે ટ્રીમર. ઓકે, એની અંદર શું થાય છે कि आ पण एक वेरिएबल कैपेसिटर है. ओके, ये जो ट्रिमल है वो भी वन टाइप का वेरिएबल कैपेसिटर ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है वो देखो. ये जो है वो सिर्फ ओनली एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है. ट्रिमर एक बार एडजस्ट कर लिया हमने, बाद में उसकी वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, जो भी वैल्यू चाहिए हमें वो हमें एक बार पहले एडजस्ट करना पड़ता है. वो एक बार एडजस्ट होने के बाद उसमें हम चेंज नहीं कर सकते. राइट? तो ये जो है वो वेरिएबिलिटी के डिपेंड पे जो भी क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे है तीनों. अब जो लास्ट है वो क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलराइजेशन. ओके, मतलब पोलराइजेशनના આધારે વર્ગીકરણ. તો એમાં બે આપ્યા છે આપણને, નોન પોલરાઇઝ પ્રકાર અને બીજું છે પોलराइज प्रकार. ओके, सो नॉन पोलराइज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दोनों जो, याद रखना है, नॉन पोलराइज मतलब दो टर्मिनल जो होते हैं कैपेसिटर के, मान लो उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, याद रखना. ओके,
સો આમાં ટર્મિનલને પોલારિટી નથી હોતી, બરાબર છે। એના જે છેડાઓ હોય છે ને બે ટર્મિનલ, એને કોઈ પોલારિટી હોતી નથી પ્લસ માઇનસની। અને આનો ઉપયોગ જે છે એસી અથવા ડીસી પર થાય છે। इलेक्ट्रोलिटिक सिवाय બધા कैपेसिटर आ प्रकार હોય છે, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो होते हैं, उसके अलावा जो सारे जो कैपेसिटर है वो उसी टाइप के होते हैं। उसका जो यूज़ है वो एसी एज वेल एज डीसी में भी यूज़ होता है। दूसरा जो ये पोलराइज टाइप का है। पोलराइज मतलब उसके जो टर्मिनल होते हैं उसकी पोलारिटी होगी, मतलब एना जो छेड़ा હોય છે એને પોલારિટી હશે પ્લસ માઇનસની, રાઈટ। અને એને જ્યારે આપણે જોડવાના હોય છે કોઈ પણ બીજા કોમ્પોનન્ટ સાથે કે સર્કિટની અંદર, તો ત્યારે એને આપણે પોલારિટીનો આપણે ખ્યાલ રાખવો પડે છે પ્લસ માઇનસનો, બરાબર। અને આ ટાઈપના જે કેપેસિટર હોય છે એનો ઉપયોગ માત્ર ડીસી માટે જ થાય છે। આ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર। આને તમારે એકદમ સિમ્પલ રીતે યાદ રાખવાનું છે, પછી તમારે તમારા શબ્દોમાં એક્ઝામમાં લખવાનું છે। બધી જ વસ્તુ ગોખવા જવાની જરૂર નથી। ખ્યાલ આવી ગયો? ओके। सो पोलराइजेशन आधारे वर्गीकरण जे छे मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलराइजेशन, उसमें दो टाइप है, नॉन पोलराइज एंड पोलराइज। सो नॉन पोलराइज मतलब उसके जो टर्मिनल होते हैं उसके पोलरिटी नहीं होती है, यहाँ पे उसकी पोलरिटी होती है, राइट। तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और ये जो नॉन पोलराइज है वो एसी और डीसी में यूज़ होता है, तो ये पोलराइज है वो ओनली डीसी में यूज़ होता है। तो याद रखना भी बहुत ईजी है, वैसे कोई इतना हार्ड है नहीं, राइट। सो आज हमने क्या देखा, एक सिंपल सा देखा कि कैपेसिटर एक्चुअली है क्या, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका सिंबल क्या है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने सिंपल तरीके से देखा, ओके। और उसका कैपेसिटेंस का इक्वेशन जो है ये वो हमने ऑब्टेन किया। देन हमने देखा सी इज़ प्रोपोर्शनल टू दी, या वी कैन से दैट एप्सिलॉन इनटू ए बाई डी, ये इक्वेशन हमने देखा। ये इंट्रोडक्शन में आ गया। सो 2 मार्क के लिए आया, कैपेसिटर के बारे में पूछा जाए तो हमें ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख देना है। 3 या 4 मार्क में तो थोड़ा इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लिखो, ओके। क्लासिफिकेशन आ जाए, वर्गीकरण, तो हमें ये लिखना है। अभी इसमें भी हम डिटेल में देखेंगे। ये जो फिक्स कैपेसिटर है ये, वो भी ये कौन से डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ होता है उसके बेस पे उसके भी क्लासिफिकेशन है, उसके भी टाइप्स है, वो हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन वो कब यूज़ होगा, जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तब डिटेल में जाना है। 7 मार्क्स में नहीं, ये 3 या 4 मार्क्स में है, तो इतना काफ़ी रहता है, राइट। सो वो जो डिटेल में है क्लासिफिकेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।